Hello students, today we will discuss NTA Vyas NEET Test 106 Physics Part. This test has 23 easy questions, 19 medium difficulty level questions, out of which one question has some discrepancy and 3 questions are difficult, and 135 plus would be a good score. So let's start with question number 1. In the hydrogen atom, the electron is moving around the nucleus with velocity v and an orbit of radius r. Acceleration of the electron is, तो कभी भी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका जो सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन होगा वो v स्क्वायर बाय आर. यहाँ पर स्पीड तो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो नहीं रहा तो 80 is 0. हमें v स्क्वायर बाय आर की वैल्यू फाइंड करनी है. v is 2.18 into 10 to the power 6. तो ये 2.18 into 10 to the power 6 and r is 0.528 angstrom, that is 0.528 into 10 to the power of -10. तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये 9 तो सब में कॉमन है, सिर्फ पावर हमें देखनी है कि क्या आएगी. तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये 4/0.5 और यहाँ पर 12 और ये वाला पावर 10, तो 22 समथिंग आ रहा है. तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. An alpha particle and a deuteron are moving with velocities v and 2v respectively. What will be the ratio of their de Broglie wavelength? So we know de Broglie wavelength is h upon p. P is mv. That means lambda is inversely proportional to mass and velocity. So lambda alpha upon lambda deuteron is equal to alpha का mass deuteron के mass का twice है, तो यहाँ पे 2 आ गया, और alpha की velocity deuteron की velocity की half है, तो यहाँ पे 1 half आ जाएगा. तो ये 1:1 रेशियो होगा. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोटॉन ऑफ मास m collides elastically with a particle of unknown mass at rest. After collision, proton and the unknown particle are seen moving at 90 degree with respect to each other. तो mass of the unknown particle is. तो यहाँ पर एक ना रिजल्ट हम ये काम में ले रहे हैं कि whenever there is 2D elastic collision between identical masses, out of which one was at rest initially, then the particles move perpendicular to each other. After collision particles जो है वो एक दूसरे के perpendicular जाएंगे. तो 4 चीज़ें जो हैं वो अगर फॉलो हों, 2D collision हो, इलास्टिक हो, आइडेंटिकल मास हो और एक रेस्ट पर हो, तो आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे. तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है. इलास्टिक कोलिजन है, 2D है, रेस्ट पर है और कोलिजन के बाद 90 पर मूव कर रहे हैं. माना जो कोलिजन हो रहा है वो आइडेंटिकल मासेस के बीच में हो रहा है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. दूसरा पार्टिकल है उसका भी मास m ही होगा. अगर आपको इसका डेरिवेशन जानना है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass m1 moving at constant speed undergoes elastic head-on collision with a body of mass m2 initially at rest. Then the ratio of kinetic energy of m1 after collision to that before collision. ओके, तो head-on 1D elastic collision हो रहा है, तो उसके लिए velocity after collision is m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus m2 to m2 u2 upon m1 plus m2. तो बिकॉज यहाँ पर इनिशियली जो मास था वो रेस्ट पे था तो ये तो हट जाएगा. सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पे था तो u2 0 है तो ये हट जाएगा. तो v1 ये आ रहा है. अब आपको फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 हाफ m v1 स्क्वायर after the collision to that before collision, and before collision half m u1 square. So k1 final upon k1 initial, ये हमको फाइंड करना है. तो हाफ m1 तो कैंसिल हो जाएगा, v1 बाई u1 का होल स्क्वायर एंड v1 बाई u1 यहाँ से m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A disk rotates about its axis of symmetry in a horizontal plane at a steady rate of 3.5 revolution per second. Coin placed at a distance of 1.25 cm from the axis of rotation remains at rest on the disk. The coefficient of friction is. तो यहाँ पे जो friction है वो required centripetal force provide कर रहा होगा which is m omega square r, और friction की value जो है वो maximum available friction से छोटी होनी चाहिए तभी ये चीज़ satisfy हो पाएगी. Maximum available friction Fs max is mu s n and n is mg. ओके, तो हमें फाइंड करना है, हमें म्यू का वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ से एन एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, इससे तो म्यू एस बड़ा ही होना चाहिए.
ओमेगा इज 3.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो ये रेडियन में हमने कन्वर्ट किया, होल स्क्वायर इंटू आर इज 1.25, सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट किया, एंड दिस इज जी। अभी आप पाई को लिख सकते हो 22/7 एंड दिस इज 3.5, तो ये होल स्क्वायर 1.25 100 और 10, ओके। तो 717.5 0.5 और 2 ये 1 हो गया, ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.25, तो 25 4 टाइम्स एंड 25 5 टाइम्स, तो ये 22 इंटू 22/4 इंटू 5 और नीचे 1000, तो ये हो जाएगा 121, राइट। 121 इंटू 5 5 1 5 10 6 505, तो ये हो जाएगा 0.605, तो 0.6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following statement related to the hysteresis loop is incorrect। तो hysteresis loop, ये जो हमारा BH कर्व होता है उसमें जो लूप बनता है वो hysteresis loop है, ये वाला, ओके। तो कर्व ऑफ BH B against H for ferromagnetic material is called hysteresis loop, तो दिस इज करेक्ट, हमें इनकरेक्ट मार्क करना है, ऑप्शन नहीं आएगा। एरिया ऑफ BH कर्व इज measure of power dissipated per cycle per unit area of the specimen, no। जो ये एरिया ग्राफ के अंदर एरिया होता है वो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन, तो ये फॉल्स हो गया, जब यही हमारा आंसर होगा। कोर्सिविटी इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यस। ये जो होता है ये हमारा कोर्सिविटी होता है कि आपको नेगेटिव डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि हमारा जो स्पेसिमेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाए, तो ये भी करेक्ट है। Retentivity of the specimen is the measure of magnetic field remaining in the specimen when the magnetic field is removed। जब आपने H को रिमूव कर दिया तो भी हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है स्पेसिमेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, तो ये भी करेक्ट है, माना बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेरीफाई ओम्स लॉ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ टेस्ट रेजिस्टर RT with a high resistance R1 and small resistance R2 with two identical galvanometers G1 and G2. Variable voltage source V, the circuit to carry the experiment test. Okay, तो यहाँ पर जो RT है उसके अक्रॉस हमको वोल्टेज और करंट को मेजर करना है ओम्स लॉ के लिए। तो अमीटर इज नथिंग बट अ गैल्वेनोमीटर शंटेड, आई मीन एक रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया तो वो अमीटर ही है, और ये जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, शंट एज शुड बी वेरी स्मॉल, एंड वोल्टमीटर इज नथिंग बट अ रेजिस्टर इन सीरीज विद दी गैल्वेनोमीटर, और ये वाला जो रेजिस्टेंस होना चाहिए ये बहुत ही हाई होना चाहिए। तो वोल्टमीटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस कौन है, R1 हाई रेजिस्टेंस है, मतलब R1 जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आना चाहिए और हमारे RT के साथ पैरेलल में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। R1 गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल सीरीज में, तो ये हमारा वोल्टमीटर हो जाएगा और ये इसके साथ पैरेलल में। फिर G2 R2 छोटा है, R2 स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसके साथ ये पैरेलल में, मतलब ये अमीटर है और अमीटर को हमने RT के साथ सीरीज में कनेक्ट करा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट फिगर द वोल्टमीटर रीच 30 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज, ओके। तो यहाँ पर ये 60 वोल्ट का हमारा सोर्स है और ये 30 रीड कर रहा है, माना इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्वलेंट 300 ही होना चाहिए, तभी वोल्टेज हाफ हाफ में डिवाइड होगा। तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बी RV, तो 1/RV प्लस 1/400 is equal to 1/300. That means 1/RV is 1/300 minus 1/400. So RV is 1200 ohm. A option. Question number 9. The EMF of 15 volt is applied in a circuit containing 5 Henry inductance and 10 ohm resistance. The ratio of the current at T infinity to T 1 second is.
ओके, तो ये जो गिवन है वो हमारे को ग्रोथ सर्किट गिवन है। ग्रोथ सर्किट में I इज I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, टाउ इज L बाई R। ओके, तो हमें बताना है I का वैल्यू एट t इक्वल्स 1 सेकेंड, तो इट इज I नॉट 1 minus e raised to the power minus 1 and r is 10 और l का वैल्यू 5 है। तो ये I नॉट 1 minus e raised to the power minus 2 हो गया। एंड करंट एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर t इन्फिनिटी होगा तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, तो t इन्फिनिटी पर हमारा करंट I नॉट ही हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम रेशो लें तो रेशो हो जाएगा I नॉट अपॉन I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2। ओके, तो ये 1 बाई ई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, I नॉट 1 बाई ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर भी ई स्क्वायर, that means B option. Next question. Straight wire of mass 200 gram, length 1.5 meter, carries 2 ampere current suspended in mid-air by uniform magnetic field. The magnitude of beam Tesla is, तो हमें डायरेक्शन वगैरह कुछ बताया नहीं है, बट ये बैलेंस ही हो रहा होगा और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ ऐसा कुछ होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन और ये ऐसा mg लग रहा है। ओके, तो BIL से अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड कब द प्लेन ले लेते हैं, करंट ऐसा है तो अगर हम BIL से देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ है और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो ये बैलेंस हो रहा होगा। BIL, तो BIL इक्वल्स mg, हमें बताना है B का वैल्यू, तो B इज mg अपॉन IL, तो मास इज 0.2 kg into 10, current is 2 ampere and length is 1.5, so it is 2 by 3 which is 0.67, so A closest match. Next question, question number 11. A mass of 1 kg carrying a charge of 2 coulomb is accelerated through potential of 1 volt. The velocity acquired by it is, okay, so change in kinetic energy is QV, okay, V volt से accelerate करा है Q charge को, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हाफ एम वी स्क्वायर इज क्यू वी, हमें v फाइंड करना है, तो v इज 2qv बाई m होल अंडर रूट, राइट। तो चार्ज इज 2 कूलम, पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, इज 2 कूलम, पोटेंशियल इज 1 वोल्ट एंड मास इज ऑल्सो 1 kg, तो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन. Magnetic field in traveling electromagnetic wave has peak value 20 nanotesla. The peak value of electric field is 10 Tesla. Okay, so E is C into V. तो हमें C का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 meter per second and magnetic field is 20 nanotesla. Right? तो ये हो जाएगा 6 volt meter inverse. That means option B. Next question. Man weighs 90 kg on surface of the earth. The height above the surface of the earth of radius r where the weight is 30 kg. तो इसका जो weight है वो 1/3 हो रहा है ना, ये मास की बात नहीं कर रहे हैं, ये वेट की बात कर रहे हैं। वेट 1/3 हो रहा है, माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमारा 1/3 हो रहा है और g जो है वो प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर से, माना जिस हाइट की, जिस x की ये बात कर रहे हैं वो √3r है, ये 1/3 हो रहा है तो ये √3 टाइम्स हो जाएगा एंड x इज h प्लस r, हमें हाइट अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ चाहिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी √3 minus 1 into r which is 0.73r. Next question. Two satellites A and B go around the planet in circular orbits of radii 4r and r respectively. Speed of satellite A is 3v, तो speed of satellite B will be, तो सैटेलाइट का जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ gm/r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r है। हमें क्या करना है, हमें स्पीड को 3 टाइम्स करना है। इफ द स्पीड ऑफ स्पीड हमें गिवन है, हमें v का स्पीड बताना है और रेडियस का रेशियो पता है, तो va अपॉन वी बी इज इक्वल टू 4:1 का रेशियो है, तो रूट में है तो ये हाफ हो जाएगा, तो v का स्पीड इज ट्वाइस ऑफ a का स्पीड विच इज 6v. नेक्स्ट क्वेश्चन. The amount of heat energy radiated by a metal at temperature T is E when the temperature is 3T energy radiated is. Okay, so H is
सिग्मा ई ए टी रेस टू द पावर 4, तो ये प्रोपोर्शनल है टी रेस टू द पावर 4 की। टेम्परेचर 3 टाइम्स कर दिया, माना जो एनर्जी है वो 3 की पावर 4, तो 81 टाइम्स हो जाएगा। Thermally insulated container is divided into two parts by a screen. In one part, pressure and temperature are P and T for an ideal gas field. In the second part, it is vacuum. If now small hole is created in the screen, then the temperature of the gas will. तो यहाँ पर हमारे पास ये कंटेनर है और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यूज हमें गिवन है। इस पार्ट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है। ओके, तो अभी जब हम स्मॉल होल कर देंगे तो फिर हमसे पूछा टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। तो जैसे ही स्मॉल होल करेंगे जो गैस है वो यहाँ पर जाएगी, गैस का एक्सपेंशन होगा और बहुत सडन होगा। तो क्योंकि इतना ये जल्दी से हो रहा है कि गैस को टाइम ही नहीं मिल रहा हीट को एक्सचेंज करने का, तो ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है। फिर यहाँ पर वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, माना कुछ है ही नहीं एक्सटर्नल एजेंसी, तो एक्सटर्नल एजेंसी कुछ है नहीं, इसलिए वर्क डन भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, किसी के अगेंस्ट वर्क हो ही नहीं रहा है। तो डेल्टा यू भी यहाँ पे ज़ीरो होगा, माना जो टेम्परेचर चेंज है वो ज़ीरो है, तो टेम्परेचर रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Carnot engine having efficiency 1/10 is being used as a refrigerator. If work done on the refrigerator is 10 joule, the amount of heat absorbed from the reservoir at low temperature is okay. तो efficiency is 1 minus Tc by Th और W by QH. तो हमें W का वैल्यू 10 गिवन है, दैट मीन्स QH is 100 joule and QC is QH minus W, that means 100 minus 10, so it is 90 joule. So D option. Next question. Current carrying square loop is placed near an infinitely long current carrying wire as shown in the figure. Torque acting on the loop is. तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट देखें PQRS का, तो it is into the plane. M2 is into the plane and magnetic field अगर 1 के वजह से देखें तो वो भी into the plane आ रहा है। तो angle between magnetic moment and magnetic field is 0 degree, therefore B M cross B भी 0 हो जाएगा, तो D option करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, magnetic dipole moment of a current loop is independent of, तो magnetic dipole moment mu is NIA। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20, parachute is after building of 50 meters without friction and the parachute opens, he decelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? Suppose उन्होंने A हाइट पे पैराशूट ओपन किया और B हाइट तक वो फ्री फॉल में थे, माना एक्सेलरेशन का वैल्यू G है, G डाउन, एंड B टू C में ग्राउंड पे पहुंचे, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप, और स्पीड जब ग्राउंड पे पहुंचे तो गिवन है VC इज 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हम A टू P पहले इक्वेशन अप्लाई करते हैं, VB स्क्वायर इज VA स्क्वायर प्लस 2AS, तो 2G इंटू S। यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल किया है 50 मीटर्स का, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू हमें यहाँ पे 9.8 लेनी है, मैंने स्पेसिफाई किया है, इंटू 50, तो ये हो जाएगा 980 VB स्क्वायर। अभी B टू C हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू VC स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर अपॉन 2A। VC square is 339 minus VB square is 980 divided by 2 into A। एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव में होएगा क्योंकि नीचे की तरफ ये जा रहा है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो 980 minus 9 is 971 upon 4 which is 242.75, तो ये डिस्टेंस आ गया और 50 ऑलरेडी था, तो 242 प्लस 50, तो इट इज़ 293 अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man throws a packet from a tower directly aiming at his friend who is standing at a certain distance from the base which is same as the height of the tower.
The packet is thrown with speed 4 meter per second and it hits the ground midway between the tower base and its friend. Then the height of the tower is. Okay, तो से height of the tower is h और उसने यहाँ पर अपने फ्रेंड की तरफ एम करते हुए उस पैकेट को थ्रो किया. बट जो पैकेट है वो ये पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पर कुछ वो लैंड किया मिडवे पे. तो ये जो हमें वेलोसिटी गिवन है इसका वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. ये भी एच है, ये भी एच है, तो ये 45 डिग्रीज हो जाएगा और ये लैंड मिडवे में करा तो दिस इज h/2. तो हम पहले x में इक्वेशन लिखते हैं. डेल्टा x इज ux इंटू टी. तो डिस्प्लेसमेंट इन x इज h/2 एंड ux इज u cos 45 इज 1/√2 इंटू टी. तो t का वैल्यू आ रहा है h/√2 इंटू डिवाइडेड बाई u. ओके, अब y में ऐसे इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो डेल्टा y इज uy/t प्लस हाफ ay t स्क्वायर. डेल्टा y इज h एंड uy/t u/√2, इसमें भी cos 45 यही हो जाएगा इंटू t प्लस हाफ ay विच इज 10 इंटू t स्क्वायर. t की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं तो ये u/√2 इंटू टी इज h/2. दिस इज h/2 plus half into 10 into t square. So this would be h square upon 2u square, right? ये h है तो h यहाँ पर h/2 गया तो ये h/2 ही हो जाएगा. 10 h square upon 2 into u square which is 16. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, एक h और h कैंसिल, तो ये 16 to 32/10 3.2 meters. Next question. Two masses m1 and m2 with m1 greater than m2 are connected by a massless flexible and extensible string passed over a massless frictionless pulley. The acceleration of center of mass is. तो ये हमारे पास पुली है, एक मास m1 है, एक मास m2 है. m1 बड़ा है, दिस इज m1, दिस इज m2. क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो जितना इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा उतना इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा. अगर हम ACM निकालें तो ACM इज m1a1 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं प्लस m2a2 इट इज माइनस a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो ACM इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a. अभी a हमें फाइंड करना है तो ये पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन इज नेट ड्राइविंग फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो एक तो फोर्स है m1g नीचे की तरफ और यहाँ पर भी m2g नीचे की तरफ. तो नेट ड्राइविंग फोर्स अलोंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज m1 प्लस m2. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर टाइम्स t. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sum of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of masses 18 and 12. Velocity of 18 is 6, तो kinetic energy of the other masses. तो इनिशियली मोमेंटम 0 था, फाइनली भी 0 होगा. तो 18 इंटू 6 प्लस 12 इंटू v. दैट मीन्स v का वैल्यू आ जाएगा 229 मीटर पर सेकेंड. अब अदर मास का काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 12 इंटू 9 इंटू 9 तो ये 6 9 9 81 81 6 6 6 486. तो बी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Energy released by fission of one uranium atom is 200 mega eV. Calculate the energy released in kilowatt hour when 1 gram of uranium undergoes fission. यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो काफ़ी क्लोज हैं, पावर में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. इसमें पूरा कैलकुलेशन करना है तो ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ने वाला है. हमें टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करते टाइम सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा. अगर कोई क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है तो हम उसको लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे. तो ये मैं मेथड बता देती हूँ कैसे होएगा. 1 ग्राम अगर हम U-235 की बात करें तो यहाँ पे हमें पता है 235 ग्राम में Na एटम्स हैं विच इज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स. माने 1 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 235 एटम्स मिल जाएंगे.
अभी एक एटम के वजह से उसे एक न्यूक्लियन लेगा और फिजन करेगा तो 200 मेगा ईवी एनर्जी रिलीज होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 235 एटम्स है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? 200 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 सॉरी 200 divided by 1 into 6.02 into 10⁻23 upon 235 इतनी एनर्जी रिलीज होगी और ये मेगा ईवी में है तो इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻, मेगा 19 और 6 तो ये -13 हो गया, ये जूल में आया। अब इसको भी हमको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये किलोवाट आवर में आंसर आएगा। ये पूरा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा तब जाके हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ 1 मिलीग्राम पर सेकेंड फॉर पावर रेडिएटेड। तो एनर्जी 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है? डेल्टा एम सी स्क्वायर 1 मिलीग्राम, दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻6 kg इंटू सी स्क्वायर 9 इंटू 10⁻16, इट इज 9 इंटू 10⁻10। ठीक है, इतना हमको एनर्जी मिल रहा है जूल पर सेकेंड। तो हमें किलो वॉट में बताना है तो -3 कर देंगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 kg इन इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी रहती है ज़्यादा में ज़्यादा, बट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो मिनिमम वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी की वो हमें गिवन है, यू नॉट इज 5 जूल, टोटल एनर्जी इज 9 जूल। ओके ओके, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू U प्लस के, तो U 5 है, E 9 है, दैट मीन्स K इज 9 minus 5 which is 4 joule. Amplitude is 0.01 meters, so time period would be, so it is mean position for kinetic energy is maximum, so half and Vmax is omega 8 is 4 joule। तो आप ओमेगा के लिए सॉल्व कर सकते हो, 4 into 2 divided by m e square, 4 into 2 m is 2 kg and amplitude is 0.01 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 100 मीटर आ रहा है। तो फिर ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 200। अभी हमको टाइम पीरियड बताना है तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय 200 दैट इज पाई बाय 100 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in figure. The mass of the spring and the pan is negligible. When pressed slightly and released, mass executes simple harmonic motion. Spring constant given है हमको 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude of the motion so that the mass gets detached? तो detach होने के लिए जो हमारा acceleration है, maximum acceleration, उसकी वैल्यू g के इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए। तो हमें एम्पलीट्यूड के लिए सॉल्व करना है, तो दिस इज ग्रेटर देन g बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m, तो ये हो जाएगा 10 इंटू m is 2 and k is 200, 1 by 100, तो 0.1 meter, that is 10 centimeters. Next question, question number 28. Electric field of a certain radiation is given by the equation falls on a metal surface having work function 2 eV. The maximum kinetic energy in eV of the photoelectron. Okay. तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें दो तरीके की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम लेना है तो जो हम न्यू इसमें लेंगे वो भी बड़ा वाला लेंगे, ये वाला। इसके लिए फ्रीक्वेंसी अगर लिखें तो ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा इज 4 पाई इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो इट इज 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो अभी हम के मैक्स निकालना है, तो के मैक्स इज एच न्यू माइनस 5, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻−34, न्यू इज 2 इंटू 10⁻15। अब ये जो वैल्यू आई है जूल में आई, बट हमें ईवी में गिवन है, आंसर भी ईवी में चाहिए और फाई भी ईवी में गिवन है, तो इसको ईवी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल इज 1 ईवी माइनस 5 विच इज़ 2.0, तो ये हो जाएगा 212.8, तो 66.3 अपॉन 8 इंटू
ये कैंसिल हो गया, तो ये 10⁻⁻⁴ -2, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 23, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 24 टाइम्स 3 टाइम्स 24 आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8.3 -2, तो 6.3 हमारा के मैक्स का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h/p h/mv, और यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया हुआ है, तो मोमेंटम को वी कैन राइट √2km and k is qv, okay, that means lambda is inversely proportional to √mq। अभी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का बताना है, लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा अल्फा, तो प्रोटॉन का मास इज अल्फा पार्टिकल का मास का 1/4 है, और चार्ज जो है प्रोटॉन का वो हाफ है, तो इसको हम अगर देखें तो दिस वुड बी 2√2:1, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 26 kg फ्लोट्स इन एयर एंड इट इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो एयर का डेंसिटी ये गिवन है, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा कि बॉयंट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और mg नीचे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा मास है वो इक्विलिब्रियम में है, तो mg equals fb, fb is rho of fluid into volume submerged into g। ओके, तो g और g कैंसिल, मास इज 26, डेंसिटी इज 1.3 इंटू 1.3 जस्ट 1.3 मल्टीप्लाइड बाय v, तो ये हो गया 20 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, airtight cage with a parrot sitting in it is suspended from the spring balance, the parrot starts flying, the reading of the spring balance here। यहाँ पर जो हमारा केज है वो एयर टाइट है, जिसकी वजह से जो भी कंटेंट है वो अंदर ही गया, अगर पैरेट फ्लाई भी किया तो उसने एयर को नीचे पुश किया होगा और इंटर्न एयर उसे ऊपर की तरफ पुश करेगी, तो ये इंटरनल फोर्सेज ही हैं जिनकी वजह से रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो रीडिंग विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो हम ये ध्यान से रीड करें, हमें मिरर कौन सा गिवन है, इट इज कन्वेक्स मिरर, अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो इमेज प्रोड्यूस्ड, तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ इज प्लस 20 सेंटीमीटर, यू इज माइनस 20 सेंटीमीटर, अगर आप पी का वैल्यू फाइंड करो तो इट इज यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो -20 इंटू 20, फिर ये है -20 और -20, तो कितना हो गया 400/40, तो 10 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, transparent plastic bag filled with air from concave lens, and now if the bag is completely immersed in water then it behaves as, तो ये है तो concave बट हमने इसको वाटर में फिल कर दिया, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव, यहाँ पर एयर है और यहाँ वाटर है, तो क्योंकि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम के से ज़्यादा है, तो जो इसका नेचर है वो रिवर्स हो जाएगा, ये है तो डाइवर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग लेंस, बट ये कन्वर्जेंट की तरह एक्ट करेगा, तो इट विल बिहेव एज कन्वर्जेंट लेंस। Uniform rod of mass m, length L is at rest on smooth horizontal surface. Ball of mass m moving with velocity v naught hits the rod perpendicularly at one of its end and sticks to it. Angular velocity of the rod after collision is, तो यहाँ पे ये इनिशियल केस है, ये v वेलोसिटी से आ रहा था, और फाइनली ऐसा होगा कि ये जो है ये रोटेट भी करेंगे और आगे की तरफ भी मूव होएगा, आगे ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क आ नहीं रहा है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अभी आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते हो, बट अगर हम कंबाइंड सीएम के अबाउट कंजर्व करेंगे तो एक ये वाला जो v है वो हमारा नहीं आएगा, वो हट जाएगा, तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ, कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट कंबाइंड सीएम। ओके, तो पहले इसका सी एम यहाँ L/2, ये इसका सी एम एंड पे, तो हाफ वे में सी एम आएगा, ये इनका सी एम हो जाएगा विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम सेंटर या फिर फ्रॉम दिस एंड। ओके, तो दिस इज ऑल्सो L/4, राइट। तो अभी हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखें, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में
सिर्फ यही मूव कर रहा है, तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर विच इज एल बाय फोर वी नॉट है ये। फाइनली दोनों ओमेगा एंगुलर स्पीड से जा रहे हैं, तो आई ओमेगा ही आएगा, क्योंकि ये वी यहीं पर ही है, तो एंगुलर मोमेंटम इस स्पीड की वजह से तो जीरो ही हो जाएगा। तो जस्ट आई ओमेगा, आई भी हमें सी एम के अबाउट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे आई का वैल्यू। आई इज, पहले इस मास का लिखते हैं, तो ये मास एल बाय फोर डिस्टेंस पर है, तो एम इंटू एल बाय फोर होल स्क्वायर। फिर रॉड का लिखते हैं, तो रॉड का पहले उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर इस पॉइंट के अबाउट, तो एम एल स्क्वायर बाय 12, अच्छा ये एम सेम है, प्लस शिफ्ट करा एम डी स्क्वायर, तो एल बाय टू से शिफ्ट करा है, और एल बाय फोर से शिफ्ट करा है होल स्क्वायर, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाय फोर कॉमन, यहाँ पर ये 16 था तो ये 1/4, ये 4 कॉमन 1/3, और ये यहाँ पे 1/4, और यहाँ पर एम वी नॉट एल बाय फोर है, 4 कैंसिल, एल एल कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो वी नॉट इक्वल्स एलसीएम लिया 12, ये हो जाएगा 3 + 4 + 3, तो 10 ओमेगा ओमेगा ओमेगा। ओके, और एक एल भी बच रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 6/5 V naught by L. That is option. Next question. Disk is performing pure rolling on a smooth stationary surface with constant angular velocity as shown in figure at any instant lowermost point of the disk. तो अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है, माना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो स्पीड है वो जीरो होना चाहिए, ये यहाँ पे v बाई आर इंटू आर, और यहाँ पे v, तो मिलकर के ज़ीरो हो जाएगा, तो v इज़ ज़ीरो, तो ये v ज़ीरो होना चाहिए। एंड एक्सेलरेशन इज, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा, विच इज़ v स्क्वायर बाय आर, तो v वेलोसिटी इज v, नो वेलोसिटी इज ज़ीरो एंड एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन. In an unbiased PN junction, electron diffuse from N region to P region because, तो N से P की तरफ अनबायस्ड है, पोटेंशियल हमने नहीं अप्लाई करा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के वजह से ही डिफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं, अनबायस्ड है। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम N टू P, नहीं, होल्स भी मूव करते हैं फ्रॉम P टू N, तो ये भी फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन N इज मोर एज कम्पेयर टू P रीजन, तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. Holes in P region attracts them, no, so C option is correct. Next question. Select the correct output Y. Okay, तो ये हमारा वापस से इसमें हमें बूलियन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, बूलियन अलजेब्रा। तो दिस इज A, ये भी A हो जाएगा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा, यहाँ A और B का NAND है, तो A B बार आ जाएगा, ये A B होल बार। फिर यहाँ क्या हो रहा है, A और A B होल बार क्लब हो रहे हैं और उनका फिर NAND है, तो ए बी होल बार का बार, ऐसे ही यहाँ पर ए बी होल बार और बी फिर इसका बार, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर के इनका NAND हो रहा है, तो y हमारा बन रहा है ए बी होल बार का बार, फिर ये ए बी होल बार बी का बार और फिर इनका बार। तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ ये पढ़ा है, ए बी होल बार इज ए बार प्लस बी बार, तो यहाँ पर भी ए बी होल बार इज ए बार प्लस बी बार, तो ए बी बार का बार, अब इसका भी बार प्लस बी बार बी का बार, इसका भी बार, तो बार का बार वही वैल्यू आ जाएगी, इट इज ए बी बार प्लस ए बी बार बी। अब इसमें से आप ये ए बी होल बार कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा ए प्लस बी, एंड ए बी होल बार इज अगेन ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी, तो दिस इज ए बार ए प्लस ए बार बी प्लस बी बार ए प्लस बी बार बी, तो बी बार बी एंड ए बार ए, दिस इज ज़ीरो, तो ये ए बार बी प्लस बी बार ए, which is option C. Next question.
Temperature should the hydrogen at 327 degrees Celsius be cooled at constant pressure so that the root mean square velocity of its molecule becomes half of its previous value. तो Vrms is proportional to root T. अभी टेम्परेचर कितना है 327 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 600 केल्विन. आपको रूट मीन स्क्वायर को हाफ करना है, हमारा टेम्परेचर को 1/4 करना है, तो टी डैश इज टी बाई 4, 600 बाई 4 दैट इज 150 केल्विन. तो डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू हो जाएगा -123 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिजिकल क्वांटिटी x is calculated from the relation if percentage error in a b c d are given. तो percentage error in x, so delta x by x is twice of delta a by a, which is 2 into 2, plus 3 times delta b by b, so 3 into 1, plus c का percentage 3, so delta c by c is 3, plus half of delta d by d, which is 4. So it is 4 plus 3 plus 3 plus 2. तो ये हो जाएगा 6, 10, तो 12%. Next question. Double slit experiment is immersed in a liquid with refractive index 1.33. Separation between slits 1 mm and distance between slit and screen is 1.33 meters. If slits are illuminated by a parallel beam of wavelength lambda, तो fringe width will be. So fringe width is equal to lambda capital D by small d. But यहाँ lambda कहाँ पर लेना है? मीडियम में इमर्स करा है, तो lambda this is with respect to air और हमको मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखना है. तो ये हो जाएगा 630 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो 1.33. कैपिटल डी का वैल्यू भी हमें 1.33 गिवन है और स्मॉल डी इज 1 mm, तो ये 10⁻⁻3. ये तो कैंसिल हो गया. ये हमारा 630 माइक्रोमीटर, ओके, माना 0.63 मिलीमीटर. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ स्लिट, सिंगल स्लिट if the first minimum is observed at 2 degree with a light of wavelength 698 angstrom? Width of slit of first minimum. तो फर्स्ट मिनिमा जो है वो हमको सिंगल स्लिट के लिए लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पर मिलता है. ये y का वैल्यू होता है, बट हमसे एंगल पूछा है, तो बीटा इज लैम्डा बाय स्मॉल डी. 2 डिग्री तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180. लैम्डा इज 698 एंगस्ट्रॉम, तो ये इसमें हो जाएगा. और हमसे डी पूछा है, डी का वैल्यू, ओके, तो डी इज 698 इंटू 10⁻⁻9, ये 2 इंटू 3.14 इंटू 180. तो यहाँ सब में ये 2 तो कॉमन है, हमें सिर्फ पावर ही देखनी है. तो ये 326 ये अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगा और ये 100 टाइम्स आएगा. यहाँ से आप 100 लिख सकते हो, ये वाला भी फिर 100 है और ये 10⁻�9, तो ये हो गया 10⁻⁻5 मीटर्स, माना 10⁻2 मिलीमीटर्स. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. हमें बस ऐसा पावर का ही देखना है, इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करी. A uniform rope of mass m hangs vertically from rigid support. Transverse wave pulse is produced at lower end. The speed of the pulse varies with height h. तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है, ये मास है स्ट्रिंग में, और हमें यहाँ पर जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है, तो हमें बताना है कि स्पीड जो है वो एक्स डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है. तो हम अगर टेंशन फाइंड करें इस एक्स डिस्टेंस पे, तो टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर टी का वैल्यू और यहाँ पर ये इस पार्ट का मास. तो टी एट एनी एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पार्ट विच इज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इंटू एक्स इंटू जी. ओके, इस पार्ट का जो मास है वो यूनिफॉर्म है, तो लीनियर रिलेशन होएगा, तो ऐसा आ जाएगा. अभी स्पीड इज अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, तो टी इज एम बाय एल एक्स जी और म्यू इज एम बाय एल, तो इट इज जस्ट अंडर रूट एक्स जी. तो v जो है वो रूट x पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पर हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ग्राफ लीनियर नहीं होगा, तो ये c और d ऑप्शन तो नहीं होने, a या b में से ही होंगे, बट ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे. तो हम स्लोप निकाल लेते हैं. तो dv बाई dx हमने फाइंड करा, तो इट इज़ 1/2 रूट x, है ना, और यहाँ पे रूट g एज इट इज. तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है. तो बी में तो ऐसा नहीं हो रहा, ए में हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. On producing the waves of frequency 1000 Hz in a Kunst tube,
the total distance between 6 successive notes is 85 centimeters. The speed of sound is, so we have 6 notes, 1 2 3 4 5 6. इसको अगर आप बनाओ तो ये ऐसा कुछ बनेगा. This much length is 85 centimeters. तो ये कितना हो गया? lambda and lambda by 2. So we have 5 lambda by 2 is 85 centimeters. Right? तो हम lambda find कर सकते हैं. Lambda is 85 into 2 divided by 5 and 100. So 5 1 5 17 85. So it is 0.34 meters. Now speed is lambda f. So 0.34 into 1000 to 340 meter per second. Next question. An inclined track ends in a circular loop of radius small r. From what height on the track a particle should be released so that it completes the loop, assuming there is no friction? तो यहाँ से रिलीज करा और यहाँ पर ये जो है लूप द लूप करें. लूप द लूप के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो अंडर रूट ऑफ 5gr चाहिए. ये हमें पता होना चाहिए ये रिजल्ट. तो अगर 5gr स्पीड चाहिए तो बस हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं. v स्क्वायर इज u स्क्वायर विच इज 0 प्लस 2gh. तो v इज 5gr equals 2gh, that means h is 5r by 2. तो ये डी ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है, 5r by 2, ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A block of mass 2 kg is at origin at t0 and is having velocity 4√5 meter per second in positive direction. The only force acting on it is conservative and its potential energy is given. Its velocity when acceleration is minimum after t0 is. So let us first find force. The force is minus of du by dx I cap, right? तो ये हो जाएगा. इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो इट इज 3x स्क्वायर, ये 12 और माइनस का साइन तो माइनस 12x आएगा. ये हमारे पास फोर्स आ रहा है. एक्सेलरेशन तभी मिनिमम होगा जब फोर्स मिनिमम होगा और यहाँ से फोर्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो सक रही है. तो फोर्स 0 कब होगा वो हम देख लेते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 12x 0, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी. तो x इक्वल्स टू 4 पे हमारा फोर्स जो है 0 है, 0 ही मिनिमम वैल्यू होगी. अगर हम नेगेटिव में वैल्यू देख रहे हैं तो वो बस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. हमें मिनिमम चाहिए तो x 4 पर आएगा. तो हमें उस पॉइंट पर बताना है कि इसका स्पीड कितना होएगा. तो यहाँ से हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. डेल्टा u प्लस डेल्टा k इज 0. तो u एट x इक्वल्स 0 या u एट x इक्वल्स 4 माइनस u एट x इक्वल्स 0 प्लस k एट x इक्वल्स 4, क्योंकि हमें फाइंड करना है, माइनस k एट x इक्वल्स 0 इज 0. तो u एट x इक्वल्स 4, यहाँ पे 4 वैल्यू अगर प्लेस करी तो ये हो जाएगा 4 4 16, 16 4 64 माइनस 64 प्लस 4 4 16, 16 प्लस इंटू 6 इज 96 प्लस 15 और x 0 पर ये वैल्यू है 15, तो माइनस 15 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है. और x इक्वल 0 पे जो स्पीड है वो है 4√5. तो 4 4 16, 16 इंटू 5 इज 80 इज 0. ठीक है. तो ये 15 15 तो कैंसिल हो गया. 96 64, तो ये 232 32 इक्वल्स हाफ इंटू m का वैल्यू 2 और ये उधर गया तो इसको मैं लिख रही हूँ 80 माइनस वी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया. तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 80 माइनस 32, तो ये 8 7 माइनस 3 इज 4. ओके. तो √48 ये हमें यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है क्योंकि इन्होंने जब सोल्यूशन लिया तो एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू को मिनिमम माना है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन बोनस होगा. थैंक यू.